Hello, ladies and gentlemen. Today, I am extremely happy to invite Ms. Neha Datta, who is a chartered accountant and YouTuber by profession. She has completed her graduation from Delhi University and did her CA course in the year 19. She was part of PwC for a little time, and recently she has taken a big step to move further in her YouTube journey. Apart from the same, she has been interviewed by the Safalta Talks, which is an initiative by Amar Ujala, India's leading Hindi newspaper, and judged many events in the Delhi University's best colleges like Daulat Ram, Dayal Singh College, and SRCC. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Ms. Neha Datta to our talk show Professional Talks. Welcome, Neha, to our show. Hi, thank you so much for having me here. Thank Such a you. pleasure being here. How are you, Neha? I'm doing great. How about you? I'm fantastic, like always. So, you are in Delhi right now? I'm from Ghaziabad. Okay, fine. See, Neha, we had recorded more than 4 videos in our professional talk show, and the vision of the professional talk show is that let us inspire the many of the students who is doing CA, CS, lawyer course, या फिर they are doing for the IITs and the preparation for the other law examinations. So the main purpose for this professional talk show is to inspire many of the students and the young members. So That's an amazing initiative. Actually, this happened with me also when, you can also relate to that. When we were students, somewhere we felt that there was a lack of mentoring and the proper guidance. And kudos to your venture and your initiative. Thank you so much for the appreciation. So Neha, we will start our talk show. And very first, I'll start with an important question of our journey of schooling and college. So let's start, please. Okay, so I did my schooling from Ghaziabad itself, from a DDBS school. And I did my college. College to nahi hi gaye, because when it comes to professional courses, we barely get a chance to go to college. So I did my graduation from Delhi University Open Learning. So I was simultaneously managing CA coaching, rushing to CA coaching in morning, and then appearing for the BCom exams in the afternoon. So that's how I manage both the things. Okay, it means regular college is not required in CA course, right? No, it's not required. Yes. A lot of people ask me a question also, that is it possible to do a regular college with CA or CS? Yes, it is possible, but I don't feel that I'm a right person to guide over this issue, because I was from open learning. So yes, regular is possible, but it's not mandatory. Okay. So what is the difference between open learning and like regular college? What is the major difference? Okay, so in regular college, you get to feel that college vibes, that college environment, the college life. When it comes to open learning, once in a while you visit the campus if you want to. So I remember that I visited once or twice, that too in the first year, because I also wanted to get that college vibe. So I just once or twice I visited there. But then it was all about you buy the 10-year question paper, just shuffle the pages one day before exam and you appear for the exam. That's how the open learning works, that you just go, write the paper, get the results. That's all. You are done with your college. Got it. So after the college, after you did graduation, and what made you to pursue the CA course? Okay. So it was not something that, oh my God, I have always dreamt of being a chartered accountant. It was nothing like that. Somewhere I knew, first of all, I saw a lot of my friends, they were doing CA. So I had no clue what CA is about, what it's all about, what are the subjects. We barely had idea when we were back then. But I saw a lot of my friends, they were doing CA. So I thought, okay, let's give it a try. Let's do BCom and CA together. That's how I started. And also in 12th, I didn't score very good marks. So somewhere back of the mind, I knew that I'm not going to get a good college. So it's better to get myself registered into some professional course, because this is a course they do not consider your 12th marks to that extent. When it comes to college, your mark should be in 80s or 90s, but professional course mein chal jata hai, even if you score a bit less. So that was the whole idea. Exactly. So after clearing CA, see, you had cleared in first attempt, or you had taken many attempts for clearing CA? I actually took multiple attempts right from the beginning. So when I was in foundation,
Foundation exam was of 200 marks and we need to score 50%, like 100 marks out of 200. And my bad luck was from since very beginning. The moment I entered in the CA exam, my bad luck begins. So 100 was required and I scored 98. Flunked by just by 2 marks. I cried like anything, but then I thought, let's give it a try again. And next time I scored 120. Foundation done. Then I got into CA Inter. CA Inter was a loop of attempt after attempt, attempt after attempt. Because what happens that when this is a course where we do not have so much of guidance available out there. You listen to one faculty, you say, okay, this is the right thing. Maybe you talk to your friends. That's the only thing you know. Exactly. There is no chart of curriculum described, or when we were in school, there used to be timely test and weekly test, or there's something like that, but it doesn't happen in this course. It's all about the self-discipline and self-study what you do. So there is no such structure or path. So somewhere you feel that I'm lost in this journey. So there was no proper guidance. And अभी तो YouTube बहुत ज़्यादा YouTube पे चीजें available है. Faculties put their videos out there, revisionary videos out there. But if I talk about 2013 or 2014, I was not much active on YouTube. या शायद YouTube पर कोई भी इतना active नहीं था. Exactly नहीं था. अभी तो बहुत ज़्यादा resources available है हमारे पास. तो तब इतने resources नहीं थे, तो कुछ भी जो समझ आया बस कर लिया. और वहाँ पर भी इंटर में मेरा इतना बैड लक चला. There are 4 subjects in one group. 400 marks, you need to score 200 marks and 40 marks individual subject में आपके होने चाहिए और aggregate आपका 200 तक होना चाहिए. 3 or 4 times I scored 190, 195, 193. That's very sad. जब आपके 150 आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, but when you are into आपको 190 बेकार आते तो उसके बाद सिचुएशन डाउन रहती है काफी. या तो बहुत ही बेकार है. आई एम सॉरी, आई एम डिस्टर्बिंग यू. वहाँ काफी स्टूडेंट्स ऐसे होता है कि वो कॉपीज अपनी रीचेक के लिए डालते हैं कि मेरा 2 नंबर है, 3 नंबर शायद इंक्रीज हो जाए. यस, उस टाइम तो मैंने नहीं डाली ये चीज, मैंने फाइनल में आके करी. सो मैंने जैसे कि मेंशन करा, माय बैड लक ना स्टार्टेड फ्रॉम फाउंडेशन इटसेल्फ. तो इंटर में भी यही चलता रहा. 1 marks, 2 marks, या कभी-कभी इट आल्सो हैपेंड कि 200 इज रिक्वायर्ड. आई स्कोर्ड मोर देन 200, बट मैं किसी एक सब्जेक्ट में रह गई. मतलब एक में 40 भी नहीं आए. तो सिर्फ एक में 40 नहीं है, बाकी में चाहे 200 से ऊपर एग्रीगेट चला गया, पर वो एक सब्जेक्ट की वजह से आई हैव टू रीअपियर द होल ग्रुप. वो अलग ही लेवल का ट्रॉमा था वो तो इंटर में वैसे ही चला. बहुत सारे अटेम्प्ट हो गए. फिर आई गेट इनटू आर्टिकलशिप. तो मुझे पता था इतने सारे अटेम्प्ट हो गए, सो ऑब्वियसली आई विल नॉट बी गेटिंग आर्टिकलशिप इन बिग 4. तो मुझे जहां भी मेरी सिटी में जो आर्टिकलशिप के लिए जो जगह मिली, आई वेंट देयर. थैंकफुली पीपल वर गुड, एनवायरनमेंट अच्छा था, आई गॉट टू लर्न मेनी थिंग्स. फिर फाइनल में आके फाइनल में अगेन द सेम थिंग हैपेंड. आई स्कोर्ड 195, आई स्कोर्ड 193. और वन टाइम मैंने बोथ ग्रुप्स दिए. 800 मार्क्स में से मुझे 400 चाहिए पास होने के लिए. आई स्कोर्ड 402, आई थिंक आई स्कोर्ड 404 मार्क्स 800 में से. स्टिल में एक सब्जेक्ट में मेरे 193 थे, उसमें 33 मार्क्स थे मेरे फाइनेंस के सब्जेक्ट में. 40 वाज रिक्वायर्ड. आई स्कोर्ड 33. आई फ्लंक्ड अगेन. I cried and cried कि क्या हो रहा है, ये कौन सा ऐसा बैड लक चल रहा है मेरा. But it continued. But thankfully I end up clearing finally. जिस लास्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुई, उसमें एक सब्जेक्ट मेरे .40. तब मुझे लगा भगवान है, इतने टाइम की मेरी मेहनत का कुछ तो बैड लक से बैड हट गया and luck started continuing. उस टाइम लक साथ दे गया. तो ऐसा चलता रहा था. तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला तो नहीं है. बट हियर आई वांट टू मेंशन वन थिंग आल्सो कि हमें बहुत ऐसा लगता है एक बार ना फ्लंक होके CA CS ये वाले जो कोर्सेज होते हैं ना, इसका रिजल्ट थोड़ा अनसर्टेन होता है क्योंकि आपका एक सब्जेक्ट पे बहुत चीजें टिकी हैं. एक में भी नहीं हुआ तो यू हैव टू रीअपियर. स्कूल जैसा नहीं है कि एक में फेल हुए तो वही वाला दे दो. तो इसकी वजह से बहुत लोगों को रीअपियर करना पड़ जाता है. और बहुत लोग ना CA CS में आके या फाइनल लेवल पे आके पहली बार जब फेल होते हैं ना, तो उनको बहुत धक्का लगता है उस चीज का और उनको वो डील ही नहीं कर पाते क्योंकि कभी हमें स्कूल में सिखाया नहीं है कि अभी सिखाया कि अभी फेल हुए भी नहीं स्कूल में तो एग्जाम दे रहे हो तो पास हो गए. तो हमें पता ही नहीं होता उससे डील कैसे करना है. हम उसको डील कैसे करते हैं, वी स्टार्ट टू टेक दैट थिंग ऑन आवर सेल्फ वर्थ कि शायद हम ही बेवकूफ है, शायद हमें ही नहीं पता, बाहर तो सब पास हो रहे हैं, हम बच गए. पर ऐसा नहीं है. आई एम ग्लैड. अभी तो मुझे लग रहा है कि आई एम ग्लैड. उस टाइम तो आई वाज ट्रॉमेटाइज्ड कि क्या हो रहा है मेरे साथ. बट नाउ आई फील आई एम ग्लैड क्योंकि इतने जब फेलियर्स आप देख लेते हो ना तो दे मेक यू अ स्ट्रॉन्ग पर्सन. आगे अब कुछ फेलियर हो तो नाउ यू नो कि ठीक है ना, हो जाता है, इतनी बड़ी बात भी नहीं है. अभी ये देखो कि वो थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है कि अब क्या करना है, अब तो जो हो गया.
सो अगर यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में जो भी लोग देख रहे हैं, अगर आप कभी फेल हो जाते हो इसमें, प्लीज डोंट टेक इट टू योर हार्ट. बहुत नॉर्मल है. मैं बहुत अटेम्प्ट लगा कर आई हूँ और मैं बोल रही हूँ कि इट्स स्टिल वर्थ इट. अटेम्प्ट के बाद भी क्लियर करते हो तो इट्स स्टिल वर्थ इट. कोई वर्थ कम नहीं होती किसी की. Exactly. Very, very important message from Neha Datta, who cleared her chartered accountant course. She said that failures are major steps for becoming successful chartered accountant. So keep continuing with study. If you get many attempts for clearing your CA, then you need not to worry about that. Okay. So after clearing CA, what is the main vision in your mind after clearing CA, like job or practice or entrepreneurship, startup, YouTube? Okay. I can add one more row, YouTube. So what is your goal? What is your vision after CA? Okay. So I continued with my content writing. I was doing content writing when I was my CA final only. As I mentioned that when you hit that rock bottom, कि अभी बहुत सारे failures हो गए हैं, तो अभी क्या? So when I was in that phase, then only I started being very active on LinkedIn. I was writing the content there daily basis पे, and I was just being the consistent with the platform, and I was just trying my hands on different skills. तो उस time पर मैंने public speaking try करा, content writing try करा, बहुत सारी चीजें try करी, and I managed to make 50-60,000 from content writing when I was in CA final itself. So I knew कि ऐसा भी कुछ profession exist करता है content writing type, या you can be a public speaker. तो once I qualified, या जब result नहीं आया था उससे पहले भी I started to record myself, and I felt कि मैं शायद communication skills पे किसी को कुछ guide कर सकती हूँ, थोड़ी बहुत भी अगर मुझे चीजें पता है. So I started to record myself and put my videos over LinkedIn. तो वहां से मुझे पता चला कि वीडियो कंटेंट भी लोग पसंद कर रहे हैं, एंड मे बी मैं इसको अच्छे से कर पा रही हूँ. बट द मोमेंट यू क्वालिफाई, सो नाउ योर पेरेंट्स आर लाइक कि ये सब तो ठीक है, अच्छी बात है, तुम करते हो, अच्छा बोलते हो, बट नाउ गो एंड फाइंड अ सर्टेन जॉब. ये अनसर्टेन चीजें हैं बेटा. ये सब बोलते बोलते हो, लिखते हो, ये सब ना हॉबी में अच्छा लगता है. ये सब कोई प्रोफेशन नहीं बनाता है इस चीज को. राइट. क्योंकि अभी भी ऐसा ही है कि कोई, उनको लगता है कि ये रेम्यूनरेटिव नहीं है, इसको कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं. हाँ, वो उनकी भी गलती नहीं है ना कि उनको हम ब्लेम करें. उनको अनकन्वेंशनल करियर पाथ्स का नहीं पता, और मुझे भी नहीं पता था उस टाइम पे तो कि चैनल से कोई कुछ कर भी सकता है. तो मैंने कहा ठीक है, नाउ गो एंड फाइंड अ जॉब. क्योंकि अभी ना ये इस चीज में बहुत होता है लोगों के, क्योंकि पैशन वर्सेस प्रोफेशन वाली जो चीज आती है ना, कि जॉब वर्सेस पैशन या फैमिली को कैसे मनाए. सो माई फंडा वॉज वेरी क्लियर. इवन इफ आई वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स, सो फर्स्ट आई नीड टू कंप्लीट माई डिग्री. तभी घर वाले कुछ और करने देंगे. कंप्लीट योर डिग्री, गेट अ बेटर जॉब. तो जैसे कि आपने पूछा जॉब वर्सेस प्रैक्टिस या यूट्यूब, तो माय फंडा वाज वेरी क्लियर. नेहा, गो एंड गेट अ जॉब फर्स्ट. जॉब आ जाएगी तो एटलीस्ट घर वालों को लगेगा कि साइड में कुछ कर रही है तो वो चलता है, बट एटलीस्ट शी इज हैविंग अ गुड जॉब, शी इज वर्किंग अंडर अ ब्रांड नेम. सो देन आई गो फॉर कैंपस प्लेसमेंट. अब कैंपस प्लेसमेंट में मुझे लगा इतने अटेम्प्ट वालों को तो कैंपस पूछेगा भी नहीं, मैं तो पहले ही बाहर हो जाऊंगी. बट स्टिल आई कंटिन्यूड विद दैट कि चलो जाके देखते हैं ना, मतलब करने में क्या बुराई है, फेल ही तो हो जाऊंगी उसमें. आई वेंट, और फिर 2-3 जगह शॉर्टलिस्टिंग हो गई. तो फिर एक PwC में मेरी शॉर्टलिस्टिंग हो गई थी. इंटरव्यू हुआ उसका, इट वेंट ग्रेट. 30 मिनट्स का इंटरव्यू था, अच्छा हो गया. वो पहले इंटरव्यू में बैठी थी, उसमें हो गया मेरा. पैकेज वाज गुड. तो लाइक चलो जॉब का तो हो गया, अब घर वाले खुश, अब हम सोचेंगे और क्या करना है. There was only one round in PwC. Yes, there was only one round. Some of the people, some of my friends who are working in the PwC, they are saying like there are more than 3 to 4 rounds for the interview. Is that right? I also heard about it, but when it was my campus placement chance, so there was just one round. Most of the companies took just one round. क्योंकि अभी वर्चुअल के थ्रू हो रही थी बहुत सारी चीजें. तो पहले जब जाकर होता था, इन पर्सन होता था, तब तो बहुत सारे राउंड होते थे. लाइक देयर इज अ GD राउंड आल्सो, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, वॉक इन इंटरव्यू व्हाट वी से. बट व्हेन इट कम्स टू वर्चुअल, तो इस बार मोस्ट ऑफ द पीपल आई हर्ड इट फ्रॉम, वो एक ही राउंड हुआ था. तो एक ही राउंड में टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछ लिए, इंट्रोडक्टरी पार्ट भी पूछ लिया, और कुछ आपके क्वेश्चंस हैं. सो दे इन दैट 30 मिनट्स ओनली दे सेग्रीगेटेड इनटू 3 पार्ट्स. कि फर्स्ट यू गिव योर जनरल इन्फॉर्मेशन, देन सम टेक्निकल क्वेश्चंस, एंड देन if you have done, it was an open forum, if you want to ask something to the recruiter or the interviewer, you can ask. तो वहीं पे segregate हो गया था सारा. तो placement हो गया, job start हो गई, but at the same time I knew कि this is not something which I can dedicate my whole life to. ये नहीं चल रहा है मुझे, साथ साथ तो कुछ करना ही है. ये vibes कैसे आई? How you feel that vibe after joining the ये job? मुझे हमेशा से vibe थी. Whenever someone used to ask me तो qualify होके क्या करेगी, I was like
कि लोगों का यही सवाल होता है ना, यू विल गो इन जॉब और प्रैक्टिस, एंड आई वाज लाइक नन ऑफ द अबव। तो फिर क्या, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई विल फिगर आउट समथिंग। See, तो there फिर is वही two था कि option, अभी job और practice, and you had created third option also, जो थर्ड आपने खुद ऑप्शन ड्राफ्ट किया कि मुझे YouTube करना है. So I'll tick for that. क्योंकि हाँ, क्योंकि प्रैक्टिस का ना, किसी को प्रैक्टिस में जाना होता है ना, तो व्हाट वी से ना, पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं टाइप्स, वो कहावत होती है ना। तो इफ समवन वांट्स टू गो इनटू प्रैक्टिस, सो दे वर्क सो डेडिकेटेडली ड्यूरिंग दैट आर्टिकलशिप पीरियड ओनली. So they are so much into that. I want to learn this thing, I want to learn that thing. They are so much active. They enjoy the whole procedure. वो आर्टिकलशिप का पूरा टेनर उन्हें बहुत मजा आता है. Whereas I knew कि मैंने रो रो कर तो आर्टिकलशिप करी है. So there's no point कि मैं प्रैक्टिस में जाने वाली हूँ. मतलब यू फील कि मैं कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ उस काम से, मुझसे नहीं हो पा रहा है वो. नो मैटर मैं अपने कितने भी बेस्ट एफर्ट्स दूंगी, मैं वहां बेस्ट नहीं कर पाऊंगी उस एरिया में. और ये चीज शायद हमें समझने की जरूरत है. इंस्टेड कि मैं ये सोचती कि मुझ में ही कोई कमी है, आई स्टार्टेड टू थिंक कि मैं शायद किसी और चीज, कोई और चीज में अच्छी कर पाऊंगी ना. सो आई नीड टू फाइंड कि वो क्या चीज है जो मैं अच्छी कर पाऊंगी. तो ये चीज मुझे एग्जाम देने के बाद ही, मैंने स्टार्टेड रिकॉर्डिंग माई सेल्फ ऑन कैमरा, तो लोगों को लगता था तू कितनी बार प्रिपेयर करती है इस चीज को. ये तो मुझे स्मूथली आता है, मतलब मैं कैमरा लगाती हूँ, बोलना शुरू कर देती हूँ. देन आई स्टार्टेड टू फिगर आउट कि शायद ये वो चीज है जो मैं करना चाहती हूँ, या ये मैं अच्छे से कर पाऊंगी. Okay. Then I started putting my videos on YouTube. वो रैंडम YouTube थी. मतलब पहले तो मैं क्वालिफाई होने से पहले तो थोड़ा बहुत कहीं डांस कंपटीशन में गई तो उसकी वीडियो डाल दी, डिबेट कंपटीशन किया उसकी डाल दी, पोएट्री लिखी तो दैट वाज सो कैजुअल. लोगों से कह के 100-200 लोग करवा लिए, रिश्तेदार फ्रेंड से कि प्लीज गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल. ऐसे हो गया. बट क्वालिफाई होने के बाद, क्योंकि क्वालिफाई, और ये यही चीज ना अगर मैं बिना क्वालिफाई हुए करती, क्योंकि लोग ना डाइवर्ट हो जाते हैं इस चीज से कि हमको भी यूट्यूब करना है तो हम भी बिना क्वालिफाई हुए शुरू कर देंगे कुछ भी. वो ना वो होता है ना, बात के वजन वाली बात होती है. दैट कम्स व्हेन यू हैव डन समथिंग. Exactly. तो अगर मेरे नाम के आगे कोई करना होगा प्रीफिक्स है, आपको उस चीज के लिए. एग्जैक्टली, अगर मेरे नाम के आगे प्रीफिक्स है ना, सो दैट ब्रिंग्स रिलायबिलिटी टू द अदर पर्सन कि इफ शी इज गिविंग सम गाइडेंस, सो दैट मस्ट बी वर्थ इट टू गिव इट अ ट्राई. अब यही मैं बिना क्वालिफाई हुए कितनी भी अच्छी गाइडेंस दूं, कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि बोलेगा इसने खुद ने तो करा नहीं है, हमें क्या गाइड कर रही है ये. एज सिंपल एज दैट. वो कमेंट्स में हमें शो हो जाता है. जैसे हाँ, फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर के पास जाते हो और काफी बार ऐसे होता है, कोई एक पर्सन है जो डॉक्टर के अंडर वर्क करता है, बट वो अपना क्लिनिक ओपन कर लेता है. ही इज नॉट एन डॉक्टर, ही और शी इज नॉट एन डॉक्टर, बट फिर भी लोग उन पे रिलाई, कुछ लोग रूरल एरियाज में कर लेते हैं, बट एजुकेटेड लोग उन पे रिलाई, वेल एजुकेटेड लोग हैं ना, वेल इन्फॉर्म्ड, वो नहीं करेंगे उस चीज पे, क्योंकि उन्हें पता है कि उसने खुद, मतलब रिलायबिलिटी क्या, क्रेडेंशियल्स उसके देखेंगे ना. तो दिस डिग्री समवेयर हेल्प मी टू गेन दैट रिलायबिलिटी एंड ऑथेंटिसिटी कि मैं कुछ बोल रही हूँ तो वो रिलायबल है. तो फिर मैंने क्वालिफाई होते ही शुरू करा. मेरा इंटेंशन से लोगों को गाइड करना कि मैंने क्या क्या गलतियां करी, जैसे कि आपने ये स्टार्ट करा क्योंकि आपको लगा ना कि देयर इज अ नीड टू हेल्प समवन आउट देयर, कि उनको कुछ आइडियाज की कमी है, वो आइडियाज मिले उनको. तो मैंने इसी इंटेंशन से पहली वीडियो डाली, पीपल स्टार्टेड टू लाइक इट, और वीडियो, और फिर लोगों की क्वेरी आती गई, मैं क्वेरी का आंसर वीडियो फॉर्म में करती गई. एंड 6-7 मंथ्स हुए, मतलब सितंबर मिड से मैंने शुरू करा था, और अभी 77,700 टू बी स्पेसिफिक, इतने सब्सक्राइबर्स हैं मेरे. लिंक्डइन पर 43,000, 15,300 इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स हैं. तो अभी तो 1 लाख प्लस की कम्युनिटी हो गई है. I feel great now. Very great, and this is the first celebrity professional in our show. more clappings to you. And आपने ये जॉब क्विट करने के बाद में YouTube जर्नी जो है, इसका विजन किस तरह से आप प्रिपेयर कर रहे हो कि मुझे YouTube के लिए क्या करना और किस तरह से ये मेरे लिए रेम्यूनरेटिव हो सकता है? Okay, तो पहली बात तो I want to take this opportunity as to give a disclaimer here कि प्लीज ऐसा नहीं है कोई रैंडमली अपना जॉब क्विट कर दे. डोंट डू दैट. मैंने क्योंकि अपने चैनल पे बोला तो पीपल वर वेरी इंस्पायर्ड टू क्विट देयर जॉब. डोंट डू दैट, क्योंकि नॉट एवरीवन इज इन अ सिचुएशन टू टेक सच रैंडम डिसीजंस, क्योंकि हर किसी को, पीपल हैव देयर फैमिलीज टू फीड, देयर बिल्स टू पे. तो अगर आपका साइड हसल से इफ यू आर नॉट एबल टू मेक दैट मच मनी एट एन इनिशियल स्टेज, तो प्लीज डोंट डू दैट. मैंने कहा कि मैं जब क्वालिफाई नहीं भी हुई थी तो भी मैं कंटेंट राइटिंग कर रही थी, वीडियोस बना रही थी. मुझे नहीं पता था इसको मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं, पर मुझे पता था कि इसका आगे कुछ कर सकते हैं हम. पर फिर मैं जॉब के साथ साथ, जॉब में मैंने बिजी सीजन में ज्वाइन करा था. आई यूज्ड टू लॉग ऑफ एट 10:30 PM, पर तब भी मैं या तो रात को या लंच ब्रेक में टाइम निकाल के वीडियो डालती रहती थी अपना. तो वहां से मुझे पता था कि इससे मैं क्या कर पाऊंगी, एंड मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था. भले ही वो मुझे जॉब जितना पे नहीं कर रहा,
पर वो मुझे पता है कि मैं बिल्कुल जीरो मेरी अर्निंग नहीं हो जाएगी अगर मैंने जॉब क्विट करी तो मैं जीरो पर नहीं आ जाऊंगी। तो कभी भी अगर कोई ऐसा डिसीजन ले तो प्लीज टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, एकदम रैंडम नहीं कि उसने छोड़ी तो मैं एकदम मोटिवेट हो गई और मैंने भी छोड़ दी और मुझे पता नहीं है क्या करना है, मैं अब फिगर आउट करूंगी। ऐसा नहीं करना है, इतने खतरनाक डिसीजन नहीं लेने हैं, कल को आपके मम्मी पापा मुझे गालियां देंगे कि ऐसा नहीं करना है आपने। This is a very bold step you have taken. Very bold step, I believe. क्योंकि टाइम लगता है कि कर लेते हैं। Same has happened with me also at that time. Okay. हाँ. So it's a very tough decision and students और members जो भी CA या CS के student जो है वो काफी attempts देने के बाद में उनको लगता है YouTube is the final stage, कि अगर मान लीजिए 2 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, लाइक नेहा की तरह हम लोग भी यूट्यूबर बन जाते हैं, विल स्टार्ट गाइडिंग, कंसल्टिंग एंड एडवाइजिंग टू द सीए। ऐसा सबके साथ नहीं होता है, मतलब समवेयर आई फील आई एम ब्लेस्ड इनफ, या जो पीछे इतने साल की मेहनत ना कहते हैं ना कभी तो वो रंग लाती है, तो शायद मुझे उसका भी वो मिला, वरना मेरे जैसे बहुत लोग बहुत अच्छी गाइडेंस दे रहे होंगे बट वो उतने कम ड्यूरेशन में इतना ऑडियंस का ट्रस्ट में भी नहीं ले पाए। तो किसी को हम देखते हैं ना कि वो अच्छा कर रहा है तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ एक ही चीज नहीं कि वो अच्छा बोल रही है, अच्छी गाइडेंस है तो सिर्फ सारा क्रेडिट उसी का ही है, पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं। कोई ब्लेस्ड है, सही टाइम पे आपको सही अपॉर्चुनिटी मिल गई, आपका अच्छा चल गया, आपको किसी ने सही गाइडेंस दे दी, आपको सही मेंटरशिप मिल गई, आप क्या पहले से कर रहे थे, आप ग्रूम हो गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो वो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो एकदम क्विक डिसीजन ना लें किसी को ऐसे देख के। और व्हेन इट कम्स टू मेरा चैनल के लिए विजन, अभी तक ये है कि मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ किसी को, कि अगर उनको जो भी गाइडेंस की कमी है, नाउ आई एम थिंकिंग कि बहुत सारे बार सीएस या सीएस में जो लोग होते हैं, सीए या सीएस में जो होते हैं, उनको एक टाइम बाद आके लगता है कि हम फंस गए हैं। सो आई वांटेड टू हेल्प कि वो यहाँ ये नहीं तो क्या कर सकते हैं। सो आई एम माई सेल्फ ट्राइंग टू हैव अ कन्वर्सेशन विद लॉट ऑफ पीपल हु कैन गाइड, क्योंकि पीपल दीज डेज फील कि उनको ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं पता है। अगर वो फाइनल तक आ गए, बहुत साल लग गए, यू नो पीपल आर देयर जिनको 9-10 साल 11 साल भी हो गए हैं उस कोर्स में, फाइनल स्टेज पे दे आर स्टक एंड दे डोंट नो कि ऑल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है, इसलिए कुछ और भी नहीं कर पा रहे हैं। सो आई एम राइट नाउ दीज डेज ट्राइंग टू हैव अ कन्वर्सेशन विद लॉट ऑफ पीपल जो हेल्प कर पाए, मुझे पहले बता पाए क्या कर सकते हैं, ताकि मैं आगे ऑडियंस को बता पाऊं कि आप ये कर लीजिए। तो अभी विजन यही चल रहा है, बाकी लेट्स सी वेयर द लाइफ विल टेक मी। Very good going, and we will talk to our institute also to collaborate with such a good initiative of Neha. And Neha, there is a conclusive question here. So there are so many students of CA or CS or IITs who are not clearing their exams and they got depressed. So what is the final message to students who had failed so many attempts? Okay. तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इसको अपनी वर्थ से अटैच नहीं करें। एक चीज यहाँ पे रखें कि अगर मुझसे कोई चीज नहीं हो रही है किसी भी एग्जाम में, तो इसका मैं एक ऑप्शन कंसिडर करूँ, ओपन रखूं कि मैं कुछ और ट्राई कर लूं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, अगर आप किसी मेंटोर से बात करेंगे या कोई आपके सीनियर है वो आपको इसमें थोड़ा गाइड करते हैं, तो इसको हम क्विटिंग नहीं बोलेंगे, इट्स जस्ट टेकिंग अ प्रैक्टिकल डिसीजन। थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचना, ऐसा नहीं है ना कि मैं 6 महीने कितने साल तक देती रहूंगी। तो एक पॉइंट पे मुझे खुद समझने की जरूरत है। जैसे कि मैंने अपने मार्क्स बताए थे, मेरे 195 193 आ रहे हैं, तो मुझे समझ आ रहा है कि 195 आ रहे हैं तो 200 आ जाएंगे, पर अगर मेरे 100 आ रहे हैं मार्क्स, 90 मार्क्स आ रहे हैं मेरे 400 में, तो मुझे समझना चाहिए ना कि मे बी दिस इज नॉट फॉर मी। तो पहली चीज ये कि उस ऑप्शन को भी ओपन रखें। दूसरी चीज, अपनी वर्थ से अटैच ना करें। तीसरी चीज, अब आपके इस कोर्स के बाहर एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। मैं उस अटेम्प्ट्स वाले लूप से तब बाहर आई जब मैंने समझा कि सीए या सीएस या कोई भी एग्जाम है तो मैं सिर्फ सीए स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं नेहा दत्ता हूँ। नेहा दत्ता की एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, वो लिखती है, वो पोएट्रीज लिखती है, वो बोल सकती है, अच्छा वो क्या क्या और कर सकती है। तो जब हम थोड़ा एवेन्यूज ओपन करके ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से चीजें देखते हैं तो हम ज्यादा बेटर सोच पाते हैं, और फिर एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैं ये भी तो अच्छा कर रही हूँ ना। मैंने डांस कंपटीशन करा, मैं उसमें जीत गई थी, मैंने पोएट्री कंपटीशन में उसमें जीत गई, तो मुझे लगा ये भी तो अच्छा कर रही हूँ ना, मतलब मैं इतनी बेवकूफ इंसान तो हूँ नहीं कि मुझसे कुछ होगा नहीं। तो वो जो नया कॉन्फिडेंस आया ना, उससे जोश में फिर एक एग्जाम, एक अटेम्प्ट, फिर एक ग्रुप क्लियर हुआ, फिर दूसरा ग्रुप क्लियर हो गया। तो फाइंड द इंडिविजुअल, योर इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, व्हाट इज समथिंग दैट इंटरेस्ट यू। डांस पसंद है तो प्लीज करो उसको दिन में रोज। डांसर बनना है इसलिए नहीं, आपको अपनी इंडिविजुअलिटी वापस से रीगेन करनी है जो कहीं खो सी गई थी वो मई नवंबर या वो जून दिसंबर के बीच में। वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी को वापस लाओ, थिंग्स विल स्टार्टेड गोइंग योर वे।
ट्रू नेहा, आप कहना चाह रहे हो कि अंदर का जो बचपन है आपका, वो खत्म नहीं होना चाहिए, वो बंद नहीं होना चाहिए। वो जो भी एक्टिविटीज आप करते थे वो स्टार्ट कंटिन्यूइंग देम, जिससे आप अपने करियर के साथ साथ आप अपनी हॉबीज भी क्लियर कर सको या परस्यू कर सको। So Neha, thank you so much for coming to our talk show. I believe that your video or your journey or the conversation we had with you inspires many students, many young members to be successful in their career. थैंक यू सो मच। और जैसे कि मैंने कहा, दिस इनिशिएटिव हैज माय हार्ट रियली, क्योंकि हम ना मैं खुद बहुत सारा ना वो इंटरव्यूज देखती थी जो जिनकी रैंक आई है, तो मुझे लगता था कि सबकी रैंक आती है शायद, क्योंकि मैंने कभी किसी को नहीं देखा किसी के ना जो जिसके बहुत सारे अटेम्प्ट लगे और उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रहा है ऐसे। आई एम सॉरी अगर कोई ऐसे देख रहा है, बट मुझे ऐसे लगता था कि सारे इंटरव्यूज की बहुत होती है और मैं तो मतलब एकदम बेवकूफ इंसान हूँ, मेरे तो अटेम्प्ट लगे, मुझे तो कोई कभी सुनेगा ही नहीं लाइफ में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आई फील ट्रूली ब्लेस्ड दैट यू कॉल्ड मी एज अ गेस्ट हेयर। तो इससे मैं शायद किसी को होप दे पाऊंगी अगर आप उस जगह फंसे हुए हो। तो आज मैं किसी टॉक शो में आई हूँ, आप भी टॉक शो में आ सकते हैं अगली बार अपना अटेम्प्ट क्लियर करके। प्लीज द होप, ऐसा कुछ नहीं है, अटेम्प्ट आपकी कोई वर्थ कम नहीं करेगा। So thank you so much for having me here. Thank you so much for starting this initiative to guide the students out there. ये बहुत helpful होगा. I'm really sure about it. Thank you Neha, and we'll catch you later. Okay. Okay. Thank you. Bye. Yeah, bye.